Hello students, I am Rashmi Vadwar, Assistant Professor of Etce Department of St. Andrew Institute of Technology and Management, Gurgaon. Now, today's topic is Z transform and its properties. So first of all, what do you mean by Z transform? Z transform is a mathematical tool which converts a differential equation into algebraic equation. Basically, it is a method to solve or to solve the questions in the form of algebraic equations. Okay, so basically, we use Z transform for the analysis of continuous time LTI system. LTI is what? Linear time invariant system, and it can be done usually using Z transform. You can see on the screen that is the formula for the Z transform, that is xz is the Z transform of the xn z raised to power minus n when n is tends to minus infinity to infinity. Basically, when you are taking the summation from minus infinity to infinity, this is a bilateral Z transform of discrete signal xn. This minus infinity to infinity can be considered for two-sided Z transform. Basically, what is Z? Z is a complex variable, and this is for the two-sided Z transform. When you are considering only one side Z transform or a unilateral Z transform for a discrete time signal, xn is given as xz is equals to Z transform of xn z raised to power minus n when n is summation of n is equals to 0 to infinity. When you are considering its summation limit from 0 to infinity, then it is considered for one-sided Z transform, or for the causal sequence we can consider this formula. Make sure for causal sequence for n is less here where n is less than 0. This is called one-sided Z transform. Here the power of Z is nothing, it is an integer which is equal, whose value is 0 1 2 3 minus 1 0 minus 2 is तरह से, and Z is a complex variable and which is equals to r is equals r e raised to power j omega. J is nothing, it is a complex argument, and r is mod of Z. Now come to an example how to find out Z transform for a given question. Suppose आपको क्वेश्चन में दिया है xn is equals to a की power n un. Un is what? It is a unit step function, right? So un is a unit step function. So how to calculate its Z transform and its ROC? See, आपको क्वेश्चन में एक ROC भी दी गई है. ROC is nothing, it is a region of convergence which is used in along with Z transform. So xz is equals to n is equals to minus infinity to infinity an un z raised to power minus n. Now we can use the equation 1 to find out this question. Now see, un is a unit step function whose value is 1 for n is greater than 0. सो हम यहाँ पर समेशन की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ना लेके 0 से इंफिनिटी ले लेंगे, क्योंकि ऑल नेगेटिव वैल्यूज के लिए un की वैल्यू 0 होती है. सो यू कैन सी ऑन स्क्रीन मैंने लिमिट्स चेंज कर दी हैं, n 0 से इंफिनिटी कर दिया है, जबकि हमारे पास माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है. नाउ फिर हमने क्या किया, xn को क्या पुट कर दिया है, a n un पुट कर दिया, un की वैल्यू 1 है, देन z रेज टू पावर n. अब a और z रेज टू पावर 1 इसको ब्रैकेट में कर देंगे कि होल की पावर n हो जाएगी, एंड n इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी. नाउ पुट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 1 2 इंफिनिटी. सो xz क्या हो जाएगी, इट इज अ infinite gp. You can see that it is a sum of infinite gp 1 plus az की power minus 1 plus az की power minus 1 की square plus az inverse की power 3
up to infinity. So this is the sum of the infinite GP and their common ratio is a raised to power a z raised to power -1. So sum of infinite GP is equals to, आपके पास infinite GP का फॉर्मूला क्या है, in sum of infinite GP is equals to first term upon में 1 minus common ratio. CR is common ratio whereas CR common ratio is less than 1. So आपके पास फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 1 है, कॉमन रेशियो आपके पास ए जेड की पावर -1 है. सो पुट दीज वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, एक्सटेड आ जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस ए जेड इनवर्स, where a z inverse is less than 1 because the common ratio is less than 1. So a z inverse है, a by z हो जाएगा which is less than 1, a less than z. Now क्वेश्चन में ऊपर आपसे साथ में पूछा गया था ROC भी. So what do you mean by, first of all, what do you mean by ROC? Basically this is a reason of convergence. क्या होता है जब आप z की वैल्यूज लेते हो और उसका z ट्रांसफॉर्म लेते हो या फिर एक सिग्नल लिया है xn, उसके वो फाइनाइट तब होता है जब उसका मैग्नीट्यूड और उसका z ट्रांसफॉर्म भी मस्ट बी फाइनाइट. मतलब क्या है, इफ द आउटपुट सिग्नल magnitude of a digital system xn is to be finite, then the magnitude of its z transform xz must be finite. तो जो भी वैल्यूज होंगी z की, the set of all values of z in the z plane for which magnitude of xz is finite is called ROC. वो उसकी ROC बोली जाती है. मैंने एक ROC के लिए एक एग्जाम्पल लिया है. सी देखिए, आप पहले कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद वो उसका फिगर है. फॉर एग्जाम्पल हमने एक अभी निकाला है, जैसे यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स UN का z ट्रांसफॉर्म निकालना है. सो इट इज इक्वल्स टू xz इज इक्वल्स टू व्हाट, z अपॉन में z -1 विच हैज अ 0 एट. अब आप यहाँ से देखो, जब आपके पास xz इज इक्वल्स टू z अपॉन में z -1 दिया हुआ है, तो आपको पता है न्यूमिनेटर से यू विल गेट zeros and from denominator you will get wholes, you know students. So when you will get the value of zeros from the numerator, then z is equals to 0, and when you will get value of poles from denominator, then z is equals to 1, and ROC is z is greater than 1 and एक्सटेंडेड ऑल द वे टू इन्फिनिटी एज शोन. अब हमने क्या किया, एक यूनिट सर्कल ले लिया है हमने. देखिए z इज इक्वल्स टू 0 पे, ये हमारा z इज इक्वल्स टू 0 पे 0 है, पोल है हमारा z इज इक्वल्स टू 1 पे. एक यूनिट स्टेप सर्कल ले लिया क्योंकि जिस उसमें उसकी वैल्यू 1 तक लेनी है, और जो उसके बाहर का सारा पार्ट है, जो आपको यहाँ पे ये लाइनिंग वाला पार्ट दिख रहा है, दैट इज ROC. ROC कैसे हो गई, ROC इस तरीके से, दिस वन, द z मोड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1. तो वैल्यू ऑफ z जहां एक से ज्यादा जो भी पार्ट है, दैट इज कंसिडर्ड अंडर ROC. होप यू क्लियर द meaning of ROC, right? After that we will go for properties of Z transform. According to the MDU um, exams, properties of the Z transform also important. So 9 to 10 properties are there. Uh, also their proofs are also important. So just first we will discuss simply properties and then one by one their proof. So first property, that is linearity. What do you mean by linearity? Basically this linearity property is based upon the superposition principle. When there is a one function, this one x1n, and second function is x2n, and when we multiply this x1n by a1 and x2n by a2, a1 a2 are just a constant, and हम इनका z ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो इनके z ट्रांसफॉर्म इनके कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई हो जाता है. सो a1 x1z प्लस a2 x2z. अभी हम इसका प्रूफ भी करेंगे. सेकेंड प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल. टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी में क्या होता है, व्हेन हम उसको सपोज हमारा सिग्नल xn की जगह x -n कर दिया, हमने उसको n यूनिट्स से रिवर्स कर दिया. मतलब सपोज x ब्रैकेट में 4 था, तो हमने अब उसको x ब्रैकेट में -4 कर दिया, तो उसका z ट्रांसफॉर्म जो है वो भी चेंज हो जाएगा, उसका z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. अगर आपका सिंपल xn था तो आपने उसका क्या लिया, xz.
अगर आपने उसको टाइम यूनिट में रिवर्स कर दिया है, x माइनस n कर दिया है, तो z इनवर्स क्या हो जाएगा, उसका z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा x z इनवर्स z की पावर -1। ये टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इज टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब आप के यूनिट शिफ्ट कर देते हैं अपने सिग्नल को, अब आप वो शिफ्टिंग पॉजिटिव भी कर सकते हैं, वो शिफ्टिंग नेगेटिव भी कर सकते हैं। सपोज एक्सन सिग्नल को आपने x माइनस के यूनिट से शिफ्ट कर दिया, k इज जस्ट अ नंबर 1 2 3 4, आपने उसे 4 यूनिट 5 यूनिट शिफ्ट कर दिया, सो इट्स जेड ट्रांसफॉर्म इज z माइनस k x जेड। इफ यू आर यूजिंग माइनस here, तो z raised to power minus हो जाएगा, easy to learn. If you are shifting in positive direction x n plus k, then the z transform is z raised to power plus k. See the difference between both the sign, minus k and minus k, plus k and plus k for exams. लर्न करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट कम टू द कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। x1n एंड x2n अगर हम इनका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में कॉन्वोलेट कर देते हैं, तो टाइम डोमेन में इन दोनों z ट्रांसफॉर्म का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्केलिंग प्रॉपर्टी। स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब हम अपने एक्सन सिग्नल को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए एन से, मीन्स दैट ए एन एक कोई भी कांस्टेंट है और उससे हम अपने ओरिजिनल सिग्नल एक्स एन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक्स ए रेज टू पावर -1 जेड। Next is time differentiation property. Basically, there is a two type of differentiation: time differentiation and frequency differentiation. So this is a time differentiation, और just आप इसके नीचे screen पे देखिए, only simple differentiation. When we multiply your x n signal by n unit, n a number or n teaser, तो उसका z transform में क्या हो जाता है, x z, and then differentiate d by dz inverse into z inverse. When you using in time differentiation, then xn minus 1 z transform हो जाएगा xn multiply by 1 minus z inverse. Next property, that is time integration property. इसमें क्या होता है, जब हम अपने एक एक्सन सिग्नल का समेशन कर देते हैं, जब भी ध्यान रखें कि जब भी इंटीग्रेशन होता है उसका मतलब समेशन से होता है। सो k इज इक्वल्स टू 0 to infinity x z is equals to z upon में z minus 1. So next property is initial value theorem. This initial value theorem and a final value theorem, both the theorems are very important according to the MDU. Single एक property को use करके आपसे कई बार question पूछा जाता है Z transform के ऊपर. So initial value theorem is nothing, that is what limit n tends to 0. अगर आपने एक कोई भी सिग्नल है, कोई भी फंक्शन है xn और उसका z ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो आप उसके z ट्रांसफॉर्म निकाल के उसके ऊपर लिमिट्स लगा देंगे z टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इनिशियल मींस स्टार्टिंग वैल्यू, सो आप माइंड में रख सकते हैं इनिशियल मींस स्टार्टिंग वैल्यू, सो लिमिट n टेंड्स टू 0 और उसके z ट्रांसफॉर्म में n z टेंड्स टू इन्फिनिटी। एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम में क्या है, लिमिट एक्स एन, लिमिट्स लगा रहे हैं हम एक्स एन, सो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n tends to infinity means that n tends to infinity means आप n पे final value apply कर रहे हैं, infinity means last value, so its z transform is what, limit z tends to 1 z minus 1 upon में z into आप इसके x z को z minus 1 upon z से मल्टीप्लाई कर देंगे और उस पर लिमिट लगा देंगे z tends to 1. So this is all about the properties of Z transform. Now come to the examples and how to use Z transform, how to solve Z transform. See, आप first question देखिए, determine the Z transform of the following finite duration signal. यहाँ पे मैंने 4 to 5 examples लिए हैं कि कैसे हम Z transform निकालते हैं। सी देखिए, एक्सन आपको एक सिग्नल दिया है, that is 3 1 2 5 7 0, आपको ये गिवन सीक्वेंस है और आपको कहा कि इसका Z ट्रांसफॉर्म निकालो, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दिस एरो साइन, ये एरो साइन आपको बता रहा है कि दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट मींस 0, यहाँ पर वैल्यू 0 है। अगर मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट इसको आप 3 पे कंसीडर करेंगे इस एरो को।
अभी यहाँ पर गिवन है, तो 5 मीन्स यहाँ पर 0 है और इधर पॉजिटिव वैल्यूज है 701 और इधर 312 नेगेटिव वैल्यूज है। इसका मतलब ये है 0, इधर से पॉजिटिव वैल्यूज, इधर नेगेटिव वैल्यूज। नाउ अब फाइंड आउट इट्स z ट्रांसफॉर्म। अब हमने इसका z ट्रांसफॉर्म निकालना है। सो यू नो द फॉर्मूला xz इज इक्वल्स टू n टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xn z रेज टू पावर n। अब यहाँ पर 2 साइडेड फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज आपको जो सीक्वेंस दी है वो 0 से इधर भी है और उधर भी है। तो आपने क्या कैसे करना है, आप xn को क्या रख देंगे, 3 रखेंगे और z की पावर क्या हो जाएगी -3, बिकॉज यहाँ पर आपका 0 है तो ये -1 है, 2 के ऊपर -1 है, 1 के ऊपर -2 है, 3 के ऊपर -3 है, इधर आ जाइए। अब इधर 7 के ऊपर जो वैल्यू है वो 1 है, 0 पे 2 है और 1 पे आपकी वैल्यू 3 है। So when you are putting this xn sequence one by one and the summation, then you will get the answer. How? अब आपने क्या किया, यहाँ पर 3z की पावर, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इसलिए 3z की पावर 3 प्लस यहाँ पर आप 1 कंसीडर कर लें, यहाँ पर z स्क्वायर के आगे 1 है तो नहीं भी लगाएंगे तो सेम हो जाएगा, z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 प्लस 7 z इनवर्स प्लस, अब यहाँ पे z की पावर नेगेटिव कैसे आई, क्योंकि यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है z रेज टू पावर -n और यहाँ पर 7 पे पॉजिटिव 1 था, तो पॉजिटिव 1 इंटू नेगेटिव 1 हो जाएगा प्लस 0। सो 0 का हम वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, ये -2 पे थी और उसके 2 पे थी और उसके बाद नेक्स्ट इज 1 z रेज टू पावर -3, दैट इज z रेज टू पावर -3 के आगे आप यहाँ 1 लगा लें, नहीं लगाएंगे तो सेम थिंग, सो यू विल गेट द सिंपल आंसर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, xn इज इक्वल्स टू 2 4 5 7 0 1 2। सो आपको ये पता है ये साइन जो है वो क्या शो कर रहा है, यहाँ से आपकी 0 स्टार्ट हो रहा है तो 0 से इधर दैट इज 1 2 3 एंड 4, तो अप टू 2 आपका यहाँ पे 4 वैल्यूज आ जाएंगी और यहाँ पे -1 -2। सो अप्लाई दिस फॉर्मूला, xz इज इक्वल्स टू n रेज टू पावर -infinity to infinity xn z रेज टू पावर -n। सो व्हेन 5 प्लस में, अब आपका इधर आपका नेगेटिव है तो आपका क्या हो जाएगा, 4 के साथ माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे z की पावर +1, तो आपने 1 लिखा नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है, 4z मीन्स z की पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर z स्क्वायर प्लस 5, अब 5 पे 0 था तो z रेज टू पावर 0, किसी की भी वैल्यू किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 प्लस 7z इनवर्स प्लस z क्यूब प्लस, अब आपने यहाँ देखा कि 7z इनवर्स था प्लस सेकंड, जब यहाँ पर आपको z की पावर -2 आना था उस टाइम पे आपका जो यहाँ वैल्यू है वो 0 है, तो इसलिए हमने 0 मल्टीप्लाई बाय z की पावर -2 वो 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू z की पावर -3 प्लस 2 इंटू z की पावर -4, सो यू विल गेट ऑल द आंसर। नेक्स्ट, xn इज इक्वल्स टू डेल्टा n। मैंने ये डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे हैं जो आपको डायरेक्ट लर्न होने चाहिए। xn कोई भी एक सीक्वेंस है, अगर वो डेल्टा n है, डेल्टा n इज नथिंग जस्ट अ इम्पल्स फंक्शन, हम इसको इम्पल्स फंक्शन बोलते हैं और इसका जो z ट्रांसफॉर्म होता है वो 1 होता है। आपको ये वैल्यू को याद ही कर लेना है, आपके जब भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं उसमें अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाए व्हाट इज द z ट्रांसफॉर्म ऑफ xn, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 1 हो, आप चाहो तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। xn एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू 0 पे 1 होती है, अदरवाइज ऑल एट ऑल अदर वैल्यूज इट इज 0, बस ये 0 पे ही 1 होता है। नेक्स्ट इज xn डेल्टा n माइनस के, यहाँ पर अब हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज की है, हमने xn माइनस के यूनिट शिफ्ट कर दिया है, सो xz हो जाएगा z की पावर -k एंड नेक्स्ट इज xn इज इक्वल्स टू डेल्टा n प्लस के, hence xz हो जाएगा z रेज़ पावर के। यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली व्हिच इज यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स। नाउ कम टू द प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, तो अगर हम बात करें
लिनियरिटी प्रॉपर्टी की, तो दैट इज एक्स एन इज इक्वल्स टू, हमने डिस्कस किया था कि उसका z ट्रांसफॉर्म एक्स जेड है, x2 है, उसका z ट्रांसफॉर्म x2z है, एंड ROC इज R1 and R2. So when we multiplying x1n by alpha and x2n by beta, alpha and beta are the just arbitrary constant. आप इसकी जगह पे कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, a1 ले लो, a2 ले लो, a ले लो, b ले लो, तो फाइंड आउट इट्स z ट्रांसफॉर्म. आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट x1z का ट्रांसफॉर्म लिखा है xn z raised to power minus n, x2z x2n z raised to power minus n. So using this formula and using superposition principle, you can see alpha x1n z raised to power n plus में x2n, यहाँ पे लिमिट्स हैं समेशन के साथ सेम है, आप यहाँ पे चाहे लगाना था यहाँ पे लगा लेना, n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. सो एक्स जेड इज इक्वल्स टू अल्फा x1z प्लस में बीटा z1 x2z. So it implies that the z transform of the linear combination of signal is same as the linear combination of their z transform. तो अगर हम x1 and x2n का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं सिग्नल्स का, अगर z ट्रांसफॉर्म, तो हम उसके सिग्नल्स का ले रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, तो उसके z ट्रांसफॉर्म का भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा. नेक्स्ट इज अ टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. xn है, उसका z ट्रांसफॉर्म xz है. आप यू कैन सी टाइम शिफ्टिंग है, हमने n नॉट यूनिट से शिफ्ट कर दिया, तो उसका z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा z रेज़ टू पावर माइनस n नॉट x जेड. इसे प्रूफ कैसे करते हैं, सी आप इस प्रूफ को देख लीजिए. ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टीज का प्रूफ इन्हीं बेसिस पे होगा. तो xn x z xn x z raised to power minus n summation minus infinity to infinity. Suppose this one x n minus n naught, इसका z ट्रांसफॉर्म हमने x डैश z से ले लिया है, which is equals to x n minus n naught z raised to power n. तो जब भी हमने इस तरह से प्रॉपर्टीज को प्रूव करना होता है, तो हम एक कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं, so which is equals to n minus n naught is equals to m. So n क्या हो जाएगा, n naught plus m. Put these values in this formula. n माइनस एन नॉट की जगह m आ जाएगा, एंड z रेज टू पावर माइनस एन नॉट प्लस m. सो आप इन टर्म्स को अलग अलग कर देंगे, x रेज टू पावर m, z रेज टू पावर माइनस एन नॉट, z रेज टू पावर माइनस m. तो z रेज टू पावर माइनस n और ये x रेज टू पावर m, z रेज टू पावर माइनस m, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये बन जाएगा x जेड और z रेज टू पावर n नॉट साथ में मल्टीप्लाई. हेंस प्रूव्ड. हमने यही प्रूफ प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी, which is equals to this one. See, you can see this कि when you are shifting in time in units, n unit आप shift कर रहे हैं, तो इसके z ट्रांसफॉर्म में s नॉट हो जाएगा. So student, up to this in this video we are proving only two properties, and in next video we will continue with proof of next properties. And up to this there is one exercise for you. You can do this one question. Do one question, find out the z transform of xn is equals to cos omega naught and cos omega n for n is equals to 0. आपको ये क्वेश्चन करना है using the shifting property, and in next video we will continue from the next property of the z transform. Thank you students.